Assalamu alaikum student. Today we will run the question number 4 of exercise 9b. So what is the question? Michael has to pay $39 for 650 minutes for outgoing calls and made using his hand phone. Find out the amount of he is charged for each minute of the outgoing calls and the amount he has to pay if he makes 460 minutes of outgoing calls. So what is the solution? First of all, we know that amounts he charged for each minute of the outgoing calls. We have to find out the amount he is charged for each minute. Each minute for means for 1 minute of outgoing calls. So for this, we will divide the $39 by 650 minutes. Okay. So we will find out the answer. What is the answer? This will be the 0.06 because we will divide the 39 by 65. How we will divide it? Okay, the numerator is 650. So we will divide the 39 by 65. Okay, 650 is greater value, so we will write down the point and this will be 390. Again, it is less than the 650, so we will write the 0 again. Now this become 3900. Now 650, you will consider the 650 is near to the 6 and this is the 39. So 6 are 39, so we can multiply 650 till to the 6. So what is the answer? 6 0 the 0, 6 5 the 30, we will write 0 here, and 3 6 6 are 36 and 3 39. So 650 6 are 3900 and the answer will be 0.06 dollar. Okay, amount he is charged Michael has to pay for each minute is 0.06 dollar. The second part of the question is the amount he has to pay if he makes 460 minutes of outgoing calls. If Michael has to pay for 460 minutes of outgoing calls, अगर उसको सिर्फ 460 मिनट बात करनी हो तो फिर उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास आंसर है 0.06, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 460 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $0.06 को जब 460 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? $27.60, यानी कि ये इसको $460 की जो है वो अमाउंट है। और पहले जो हमें फाइंड आउट जो हमें गिवन था वो $39 था 650 के लिए। पहले हमने 1 मिनट के लिए निकाला, अब हमने निकाला है 460 मिनट के लिए। तो आप कैसे आंसर आएगा इसका? 460 को रफ वर्क में करेंगे काम, 460 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06. Now 600, 6 6 are 36, 3 will be carry, and 6 4s are 24, and 24 and 3 will be 27. Now these are the two zeros will be multiplied 0 0 and the 0. Again 2 crosses and 0 0 and 0, and the answer will be 0 6 7 and 2. ठीक है, and the point will be after 20, this will be 27.60. This is the answer. Okay, now question according to the question, we will find out the amount he is charged for each minute, and then we find out the total amount he has to pay for 460 minutes of the outgoing call. So this is the answer of question. This is the solution for question number 4.
Okay, now come to the question number 5. Question number 5 is, okay, now student, question number 5 is, a car requires 22 liters of the, okay, first I have to, okay, now a car requires 22 liters of the petrol to travel a distance of 259.6 kilometers. Find number 1, the distance that the car can travel on 63 liters of the petrol. Number 2, the amount that car owner has to pay to travel a distance of 2013.2 kilometers if a liter of petrol costs $1.99. What the given, okay, so what are the givens? First we have to check what are given and what we have to find out. There are the values. 22 liters are required, petrol are required by a car if he travels 259.6 किलोमीटर. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? तो आपको जो है ना ये क्या दिया हुआ है कि 22 लीटर पेट्रोल, 22 लीटर्स पेट्रोल जो है वो में 259.6 किलोमीटर कार ट्रेवल करती है, तो 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी? तो ये आपके पास ये नजर आ रहा है आपके पास सोल्यूशन। डिस्टेंस ट्रेवल ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जो आपके पास किलोमीटर है उसको लीटर ऑफ पेट्रोल से डिवाइड करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कार ट्रेवल करेगी 11.8। कैसे निकलेगा? फर्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय द, ओके, इन रफ वर्क वी कैन डू इट। 259.6 divided by 22. Okay, the answer will be, first of all, 22 ones are 22, and then the remaining is 3, 9.6. Okay, now the 22 twos are 44. The 44 is greater than 39, so we will again divide by 1. 22 ones are 22. Okay, now the remaining is 7, 1.8. Now here will be point. Okay, so point, this point will be reduced. Now 22 6 are 168. The answer 8. 22 8 are 2 178. Okay, 2 8 are 16. 8 2s are 16 and 1 17. Okay, this will be the answer. Okay, this will be the answer. A car travel in 1 liter, that how many kilometers? 11.8 kilometers. Now the question, what part of the question number, first part of the question 5, the distance that the car can travel on 63 liters of petrol. If the car is travel in has to travel by using 63 liters, कार के पास अगर 63 लीटर पेट्रोल है तो वो कितना ट्रैवल करेगी? तो सिंपल, जितना वो 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में ट्रैवल करती है, यानी कि 11.8 किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा ये आंसर? 11.8 मल्टीप्लाई बाय 63। 3 8s are 24 and 2 carry, 3 ones are 3 and 2 5 and 3 ones are 3. Again we will multiply by the 6. 6 8s are 48, 4 will be carry, 6 ones are 6 and 4 10, 1 will be the carry, 6 ones are 6 and 1 7, and the answer is 4 3 4 7, and point is after one digit, that is here. Okay,
This is the answer. Car can travel on 63 liters of petrol. The answer is 743.4 kilometers. Now the second part of the question, the amount that the car owner has to pay to travel distance of 2013.2 kilometers if a liter of petrol costs $1.99. Again, if a man is want to travel 2013.2 kilometer, so how much money he has to pay in the cost of petrol? अगर 1 लीटर पेट्रोल $1.99 का आता है, तो इतने किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसका कितना पेट्रोल, कितनी डॉलर का पेट्रोल जो है वो उसका कंज्यूम होगा। तो ये हमने निकालना है। पहले हम क्या करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगर ये जो है, पहले हम रेट निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इसको हम डिवाइड करेंगे 11.8 से। ये जो वैल्यू है ये किलोमीटर में है, तो हमें रेट फाइंड हो जाएगा। राइट, ठीक है, कि 1 लीटर में गाड़ी इतने में कितना ट्रैवल करेगी। ये रेट आ जाएगा आपके पास। 2013.2 को 11.8 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप ये जो जितने लीटर वो कंज्यूम करेगी, इतने ट्रैवल करने के लिए कितना कंज्यूम कर रही है वो, इतना लीटर कंज्यूम कर रही है। जब ये आंसर आ जाएगा तो उसको आप उस 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप कैसे निकालेंगे? ये क्या है, आपके पास टोटल कार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2013.2 किलोमीटर। We will divide it by the 11.8. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिड्यूस हो जाएंगे। वी विल डिवाइड इट बाय द 2। 2 5s are 10 and 2 9s are 18. Again 2 1s are 2, 0, 2 6s are 12 and यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 6s are 12. Okay, now we can divide it by the division method. In the rough work, 1 0 6 6 by 59. 59 2 is greater than the 106, so we will divide by 1. 5 9 59, 59 1 is 59 and here is 6। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 7। और यहाँ पे आपके पास जो है वो जो है 9 में से 4 आपके पास जो है वो जाएगा, तो आपके पास 9 में से 5 जाएगा तो 4। अगेन अगर आप इसको 5 टेबल समझे, इसको 47 करेंगे तो आप इसका आ जाएगा 7 से होगा ये। ठीक है, 7 9 यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। 17 और 59 को, जब 7 को 59 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर। यहाँ इरेजर लेना पड़ेगा हमें। ओके, 59 multiply by 7. Okay, 7 9s are 63, 6 ऊपर, 7 5s are 35, 35 and 6 41. Okay, now 4 1 3. So what is remaining here? 3 and 6. ओके, दिस इज द आंसर। और क्योंकि ये पूरा पूरा हो गया, ये भी छोटा है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। अच्छा, तो ये आपके पास आंसर है। अब अमाउंट द कार हैज टू पे, यहाँ पर आएगा आपके पास 63। ठीक है, यहाँ पे इसको काट के आप लिखेंगे 63। जो आंसर है वो यहाँ आएगा होल नंबर में, और आपके पास डिनोमिनेटर में 63 आएगा, और जो जिससे आपने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये आ गया आपके पास लीटर के 2013
13.2 किलोमीटर का ट्रेवल करती है तो उसका पेट्रोल कितना कंज्यूम होगा, 170 होल 63/59 लीटर। अगर इतना कार, फिर हमें ये कार ओनर को कितना प्राइस कॉस्ट जो है वो उसकी होगी पेट्रोल की, अगर कार इतना ट्रेवल करती है। तो हम ये जो आंसर है, अब इस आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 लीटर पेट्रोल फॉर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 170 होल नंबर 63/59 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.99 से, तो आपके पास आ जाएगा 339.51। और ये कैसे आएगा कि पहले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इसको इससे जो है वो डिवाइड, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि 60 इसको पहले मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें और फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आप इसको कैसे करेंगे, ये मैं आपको जो है ना फिर इसको करके बताती हूँ अभी। Okay. Students, so फिर amount of petrol required to travel a distance of 2013.2 kilometer, we will find out the rate. How we will find out the rate? We will divide this distance by the distance traveled on 1 liter of petrol. The answer will be 11.8. Okay, so we by this we can find out the amount of petrol required to cover the distance of 2013.2 kilometers. This will be the answer by division. Okay, now the second part is we have to find out the car owner has to pay the amount or the cost of petrol to travel this much of the distance. So we will multiply the this we will multiply this answer with the cost of 1 liter of the or cost of the petrol, which is for 1 liter, that is the dollar 1.99. This is the cost for 1 liter. Okay, this is the answer by the multiplication of this 339.51. This is the answer after the multiplication of the 170 whole number 36 divided by the 59 multiplied by the dollar 1.99. Okay, and this will be the answer. The this is the cost which the man is has to pay to travel 2013.2 kilometer. Okay, now students, come to the next question. 200 gram of the fertilizer is required for a plot of land that has an area of 8 meter square. What are given? The given values are 200 gram of fertilizer. 200 gram of fertilizer is required for a plot and the area of plot is 8 meter square. So for 1 meter square, how much fertilizer is used? We will divide 200 by 8. This is the answer will be 25. 8 ones are 8 to the 16 and 8 fives are 40. So answer will be 25 gram. This is the amount of fertilizer used for 1 meter square of the land. Now the what is the question? The amount of fertilizer needed for a plot of land that has an area of 14 meter square. तो 14 मीटर स्क्वायर के लिए कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा? आप क्या करेंगे, जब 25 आया था ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 मीटर स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीड फॉर द 14 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड। सो 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आप रफ वर्क में क्या करेंगे, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको इतना आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 14 को यहाँ आप रफ वर्क में फिर से करेंगे, 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 350 ग्राम। 350 gram is the amount of fertilizer needed to land that has an area of 14 meters square. Now, the second part, the area of the land that can be fertilized by 450 gram of fertilizer. अगर आपके पास 450 ग्राम फर्टिलाइजर, तो कितने एरिया के लिए 450 फर्टिलाइजर पूरा होगा? तो आप क्या करेंगे, 450 को डिवाइड कर देंगे
25 सी, तो आपके पास आ जाएगा 450 क्या है आपके पास ग्राम, और 25 क्या है, वो ग्राम है जो कि आपके पास 1 मीटर के लिए होता है। तो आपके पास लैंड आ जाएगा, 450 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 18। और ये कैसे करेंगे, इसको आप रफ वर्क में 450 को आप जो है वो डिवीजन के साइन के अंदर, ठीक है, 450 एंड 25 इधर आएगा। अब इसको आप खुद से करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। नाउ द come to the next question. Okay. Next question is question number 7. Okay. What is the question number 7? In question number 7, there is a piece of metal is heated to 428 degrees centigrade. Piece of metal is heated at to 428 degrees centigrade. Before it is left to cool. 428 तक एक मेटल पीस को हीट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको कूल करेंगे। पहले जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द मेटल फॉल्स एट ए रेट ऑफ 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर फर्स्ट 3 मिनट तक जो है वो क्या होगा कि वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, हर मिनट पे 23 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आएगा। फिर क्या होगा, फिर एट रेट ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, यानी कि आपके पास 3 मिनट तक तो आपके पास 23 करके कम हुआ, उसके बाद अगले 15 मिनट तक 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होगा, और उसके बाद जब 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट वो कम होता जाएगा जब तक कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। अब आपको पूछा क्या गया है, द टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 9 मिनट, 9 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि पहले 3 मिनट में क्या हुआ था, 23 करके लेस हुआ था, और उसके बाद 15 मिनट तक क्या हुआ था कि वो जो है वो 15 मिनट तक कम हुआ था। तो पहले 3 मिनट में देखिए टोटल टेम्परेचर कैसे हम करेंगे, टोटल टेम्परेचर 428 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें से माइनस करेंगे कि 23, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास कैलकुलेशंस हैं। देखिए कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट 3 आपके पास क्या हुआ, मिनट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, तो आप क्या करेंगे 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर हमें पता है कि इन्होंने पूछा पूछा कितने 9 मिनट का पूछा, लेकिन 9 मिनट का तो हमें अंदर क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 मिनट तक तो 23 तक कम हुआ, उसके बाद 6 मिनट तक क्या हुआ, ये हमें बताया ना 15, अगले 15 मिनट तक, नेक्स्ट 15 मिनट तक ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड करके लेस हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसमें से 6 मिनट हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये 3 और ये 6 मिला के 9 मिनट हो गए। ठीक है, तो आपके पास 15 × 6 कर देंगे। अब कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व ऐसे होगा कि पहले आपने 428 लिखा माइनस, फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन पहले आपके पास है 428, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा 23 को जब 3 से करेंगे तो आपके पास होगा 3 3 9 एंड 3 2 6, ठीक है। अब आपके पास जो है वो क्या है, प्लस करेंगे 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 ऊपर आ गया, 6 1 6 9, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, किन को ऐड करना है, इन दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 9 एंड 6 कितना हो जाएगा 159। अब आपने क्या करना है 428 से 159 को माइनस कर देना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं, 428 माइनस 159, अब कैसे होगा देखें, यहाँ से 8 तो छोटा है तो आप यहाँ से ले लेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 11 बचा, तो 11 में से 5 गया आपके पास 6 आ गया, और यहाँ पे 3 बचा तो 3 में से 1 गया आपके पास 2 आ गया। इस तरह से आपके पास ये आंसर आया है 296 69 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि नेक्स्ट आपको बताया गया है कि टेम्परेचर ऑफ द मेटल आफ्टर 18 मिनट्स। 18 मिनट्स कैसे होंगे इसमें? 18 मिनट्स कैसे हो सकते हैं कि आपने जो है ना वो 3, देखें टोटल पूछा हुआ ना, टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गौर से करें, ये 3 मिनट था और 15 मिनट था, ये टोटल मिला के कितने होंगे? 18 मिनट। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 18 मिनट। कैसे निकालेंगे? 428 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल टेम्परेचर था, माइनस करेंगे फर्स्ट 3 मिनट में वो 23 के रेट से जो है कम हुआ था, उसके बाद अगेन 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट 15 का रेट था, तो ये 15 और ये 3 मिलाकर टोटल टाइम हो गया 18 मिनट। और ये सारा कैलकुलेशन इसी तरह होगा कि पहले तो आपके पास है 428, ठीक है, और फिर आपके पास जो सेकंड वाले 23 को 3 से किया था तो आपके पास 69 आया था, और फिर आपके पास जो है 15 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर क्या आएगा? ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से कर लें। 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ आ गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7 एंड क्रॉस 1 5 ज़ा 5 and 1 1 the 1. The answer will be 5 12 1 उधर आ गया तो आपके पास 225, ठीक है, तो ये 225 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस करके और फिर इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। ये 225 और 69 को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 9 और 5 कितने होते हैं? 14। तो 14 का 1 यहाँ आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 और 6, 3 और 6 कितने होते हैं आपके पास? 9, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया 2। अब ये इसमें से माइनस कर दें 428 में से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ लिखें 428 और यहाँ पे आप लिखें 294, 294 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 8 में से 4 गया 4 और 12 में से 9 गया आपके पास 3 और यहाँ पे 3 बच गया था तो 3 में से 2 गया 1। ये आंसर आ गया 134 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा है कि अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नीडेड फॉर द फॉल सो दैट इट विल रीच ए टेम्परेचर 25, कितना? 134 ये आ गया था ना टेम्परेचर टोटल, इसमें से 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर दे तो टोटल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो कितना फॉल हुआ? 134 में से 25 माइनस कर दे तो 109 आएगा। अब है कि टाइम नीडेड फॉर अ मेटल टू रीच ए टेम्परेचर 25 कैसे आएगा? आप अगर पर मिनट निकालें तो 109 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल टेम्परेचर फॉल हुआ है और कितने मिनट में हुआ है ये देखें, ये लिखा हुआ है आगे जो रेट जो था ना, रेट था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 होल नंबर 5/8, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं बता देती हूँ 109 को, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दें, ये क्या आ जाएगा आपके पास जो है वो, इस तरह से आप आंसर निकालें, जो आंसर होगा वो ऊपर आएगा 13, जो रिमेनिंग होगा वो होगा 5 और जो जिससे डिवाइड किया है वो 8, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हो गया है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट वन इंशाल्लाह आप जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।